Hello students, from today's lecture we are going to start with chapter 8, that is comparing quantities. In this chapter, two concepts we are going to study. One is about the percentage and second is we can say that related to the percentage, that is interest, simple interest and compound interest. Okay, these two are the main topics. Now we are proceeding with the concept of percentage. Then in daily routine life, if we observe, then in many places we are using concept of percentage. For example, right now in malls and shops you will observe discount. Okay, this much percent discount is there. Okay, you used to observe. Then how much discount is there in rupees? To calculate that, you must know the concept of percentage. Okay, then in your result sheet you will observe the average marks and total marks of all subjects, but how much percentage is your results, that you have to calculate. Okay, so in we can say that various ways we used to observe the concept of percentage. So how to apply the concept and how to, we can say that, calculate the percentage, that we will study in this concept. Okay, then later on we will proceed with simple interest and compound interest. Okay, so right now let us continue with exercise 8.1, in which basic concepts of percentage are there. And then after in exercise 8.2 we will study about the profit, loss, discount and everything. Okay, so right now let us proceed with exercise 8.1. Question 1. Find the ratio of the following. Here two quantities are given to us and we have to find the ratio. Okay, so let us see first one. A, speed of cycle 15 km per hour to the speed of scooter 30 km per hour. So very easily we can find the ratio. A, speed of cycle to the speed of scooter. So this ratio will be 15 kilometer per hour upon 30 kilometer per hour. So 15 2s are 30 होता है, that's why this ratio is 1/2. So ये रेशियो से भी हम दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर का रेशियो 1/2 है. इसका मतलब क्या होगा कि साइकिल का स्पीड स्कूटर के स्पीड से क्या है, हाफ है, आधा है. ठीक है, उल्टा भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि स्कूटर का स्पीड साइकिल से क्या है, डबल है. तो ये रेशियो से इस तरीके से हमारा कंपैरिजन पॉसिबल बन सकता है. ठीक है, देन बी 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. अब देखो यहाँ पे ये रेशियो ढूंढने के लिए दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए. 1 मीटर में और 1 किलोमीटर में है, वो ना चले. तो ये 5 मीटर और नीचे हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो 10,000 मीटर्स. एज यू नो कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 meters. So 5 2s are 10. So this will be 1/2000. Okay, ratio. Then see 50 paise to 5 rupees. अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि हम पैसे टू रुपीस का रेशियो नहीं ले सकते, इसलिए दोनों क्वांटिटीज को हमें क्या करना होगा, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा. 5 रुपीज, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा, याद रखना. हाँ, कई लोग 60 पैसा ले लेते हैं, दैट्स वाई. सो 50-50 का 10 बचेगा, सो 1/10 विल बी द रेशियो. इसको आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, 1:2. This is 1:2000 and this is 1:10. ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन 1 के 3 जो रेशियोज हमें ढूंढने थे वो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कन्वर्ट द गिवन रेशियोज इनटू द परसेंटेज. और लेक्चर पॉज करके ये आप पहले लिख लीजिए क्वेश्चन 1 के तीनों सम्स. ठीक है, फिर हम वो आगे कंटिन्यू करेंगे.
ओके, नाउ लेट अस हैव अ क्वेश्चन 2 कि जिसमें हमें रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी। आपको जो भी रेशियो दिया है उस रेशियो को आप क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 उसमें फर्स्ट वन 3/4, इस रेशियो को क्या करो, परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 4 100 होता है, so 25 3 75%. Okay, so this ratio is representing 75%. अगर आपको वापस रेशियो चाहिए तो इस 75 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो भी क्या हो जाएगा, आपको ये रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, परसेंटेज हमेशा 100 के रिस्पेक्टिवली ही फाइंड किया जाता है। ठीक है, 2:3 या 2/3, तो इसका रेशियो ढूंढने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, तो 200/3 हो जाएगा। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो 3 6 18, अगेन 6 18, सो दिस विल बी 66 एंड 2/3%। ठीक है, इस तरीके से हम हमेशा घुमाते हैं। तो 66 इंटीजर एंड 2/3, दिस विल बी द परसेंटेज। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 था कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन लेक्चर पॉज करके क्वेश्चन 2 आप लिख लीजिए, देन आफ्टर वी विल प्रोसीड विद वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन 3 ऑनवर्ड्स। ओके, now let us have a question 3. अब देखो क्वेश्चन 3 में क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब देखो यहाँ पे जब परसेंटेज आता है तो परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर बार क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कुछ लॉजिकल चेंजेस होंगे। तो जो आपको वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको आप कंक्लूड करें, दिमाग में अच्छे से उसको आप समझे, तो ही आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन समझ सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपका कॉन्सेप्ट जो भी या लॉजिक जो आप लगाना चाहते हो। तो देखो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन समझते हैं। सो हर बार आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप साथ में ध्यान से क्वेश्चन समझते जाना। ठीक है, अदरवाइज फिर जैसे सेकेंड चैप्टर में हुआ था लीनियर इक्वेशन में, वैसा ना हो कि मुझे वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आता है, नहीं सॉल्व हो पाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम ना सॉल्व होने का एक ही रीज़न होता है कि हम क्वेश्चन ना समझ पाए। इसलिए बेटर है कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे वैसे आप टर्म समझते जाइए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझते जाइए। तो देखो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो जो टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 72% स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। देन हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कितने इंटरेस्टेड नहीं है। हाउ मैनी इन द सेंस हमें यहाँ पे नंबर पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है। इसमें दो मैथड्स हो सकते हैं। हम यहाँ पे पहले फर्स्ट मैथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो 25 टोटल स्टूडेंट्स है। ओके, ओके, एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स interested in mathematics, so we can say that maths, okay, are कितने हैं, 72%। 72% स्टूडेंट्स आर देयर हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है।
अब पूछा क्या है कि हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड, कितने इंटरेस्टेड नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ हमें परसेंटेज में नहीं देना है। तो हम क्या करते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स 25 है, ठीक है, और इंटरेस्टेड स्टूडेंट कितने परसेंट है, 72%। तो हम क्या करते हैं 25 टोटल स्टूडेंट का 72% ढूंढ लेते हैं, दैट विल गिव्स अस नंबर ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट। उसको हम टोटल स्टूडेंट में से रिड्यूस कर देंगे तो हमें क्या मिलेंगे, नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट। देखो ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि इंटरेस्टेड है। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स, कितने इंटरेस्टेड है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 72% ऑफ 25, ठीक है, 25 जो टोटल स्टूडेंट्स है उसके 72%। तो 72% ऑफ 25 ये कैसे ढूंढ सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा मे बी कि 72/100 इंटू 25, ओके। सो 25 4 जा, देन 4 18 जा, 18 4 जा 72 होता है, तो 18 स्टूडेंट्स दिस आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स। ये जो है वो मैथ्स में इंटरेस्टेड है, तो नहीं है वैसे कितने हो जाएंगे, 25 में से इंटरेस्टेड 18 को हम रिड्यूस कर दें। सो देयरफॉर number of students not interested in maths is equals to 25 minus 8, sorry 18 यानी कि 7। so 7 students are there who are not interested, ठीक है, जो कि इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये एक मेथड हुआ कि जिससे हमने ढूंढा। कंसेप्ट खास समझना कि टोटल हमें 25 स्टूडेंट्स दिए थे, इसके 72% इंटरेस्टेड थे, तो हमने ये परसेंटेज में है उसको नंबर में कन्वर्ट करना था, तो टोटल नंबर था हमारे पास, तो 72% ऑफ 25 आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। सो 72/100 इंटू 25, इस सिंप्लीफिकेशन से हमें मिल गया कि भाई कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है मैथ्स में, तो वो है 18 स्टूडेंट्स, दे आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, ओके, इंटरेस्टेड इन मैथ्स। तो फिर नॉट इंटरेस्टेड कितने हैं, तो टोटल 25 में से हमने 18 रिड्यूस कर दिया, तो भाई ये 7 स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे मिला। नाउ सेकेंड मैथड फॉर द सेम, तो अगेन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 है, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितने हैं, 72%। हमें पता है कि टोटल परसेंटेज हमेशा कितने होते हैं, 100 होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरी मेथड में ये कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स ढूंढ ले पहले, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 72, यानी कि 28%। 28% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड नहीं है किसमें, मैथ्स में। ये पहले हमने परसेंटेज ढूंढ लिया, अब हम क्या करेंगे 28% ऑफ 25 ढूंढ लेंगे, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि कितने इंटरेस्टेड नहीं है, सीधा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स not interested in maths equals to 28% of 25, यानी कि 28/100 into 25। So 25 4s are 100 and 4 7s are
तो 7 स्टूडेंट्स आर देयर। ओके, तो दोनों चीजें आप कर सकते हो। पहले हमने क्या कर दिया कि परसेंटेज, जो जनरल परसेंटेज होते हैं 100, उसमें से हमने जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट के परसेंटेज थे वो माइनस कर दिया, तो हमें जितने परसेंट मिले वो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, उस परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, जो टोटल था उसके उतने 28% हमने ले लिया। यहाँ हमने सीधा पहले इंटरेस्टेड स्टूडेंट ढूंढ लिए, यानी कि 72% ऑफ टोटल ढूंढ लिया, तो इंटरेस्टेड मिल गए, और उन इंटरेस्टेड स्टूडेंट को टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर दिया तो नॉट इंटरेस्टेड मिले। ठीक है, सो अल्टीमेटली दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज है। सो दिस इज द, वी कैन से दैट, कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। सो ये आप लेक्चर पॉज करके दोनों मेथड्स लिख लीजिए, लिखने दोनों मेथड्स है, बाद में भले फॉलो अप कोई एक करो। ठीक है, okay, now we will proceed with question number 4. Okay, now question 4. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. फुटबॉल टीम है, उसने टोटल कितने 10 मैच जीते आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। मतलब क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं कि उन्होंने टोटल जितने भी मैच खेले हैं उसमें से 10 मैच वो जीते हैं। ठीक है, टोटल कितने खेले वो हमें मालूम नहीं, बस 10 मैच जीते हैं वो मालूम है। ओके, इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, अगर वो 40% मैच जीते हैं, विनिंग परसेंटेज उनके कितने हैं 40 है, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। ठीक है, तो ओवरऑल उन्होंने कितने मैच खेले हैं ये हमें ढूंढना है, ओवरऑल कितने मैच उन्होंने खेले। ठीक है, दैट वी वांट टू फाइंड। अब खास करके देखो, जब यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ इतना है कि अ टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। ओरिजिनल कितने टोटल मैचेस थे वो हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास परसेंटेज है 40%, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है कि किसी भी कोई एक नंबर का 40% कितना होता है, 10 होता है, 10 मैचेस दे हैव प्लेड। ठीक है, तो हाउ मैनी मैच डिड दे प्ले, मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ मैचेस हमें क्या करने हैं यहाँ पे ढूंढने हैं। जब हमारे पास ये चीज़ ना हो तब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, पर पहले हम अज्यूम करके। कंपैरिजन क्या, कैसे और क्या, सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे कि लेट दे हैव प्लेड 100 नंबर ऑफ मैच, क्योंकि ओरिजिनल कितने मैच खेले उन्होंने वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तो जब भी परसेंटेज में ओरिजिनल चीज एब्सेंट हो तो उसको 100 अज्यूम कर लेना है। ठीक है, सो लेट टीम played 100 number of
मैचेस। ओके, कितने उन्होंने 100 नंबर ऑफ मैच जीते हैं, सॉरी खेले हैं, ठीक है, दे हैव प्लेड 100 नंबर ऑफ मैचेस। नाउ दे won 40% ऑफ मैचेस। इस जितने भी खेले उन्होंने उसके वो 40% मैच क्या करते हैं, जीत जाते हैं। तो नंबर ऑफ मैचेस दे won इज इक्वल्स टू, इस बेसिस पे 40% ऑफ 100 यानी कि 40/100 इंटू 100, 40% ऑफ 100, तो 40% क्या होता है, 40/100 इंटू 100, तो 100 गया, तो 40 मैचेस दे वॉन। ठीक है, ये हमने जो 100 नंबर ऑफ मैच दे प्लेड अज्यूम किया था, उसके ऊपर से हमने ये क्या किया है, डिराइव किया है कि अगर वो 100 मैच खेलते तो 40% के हिसाब से वो 40 मैच क्या करते, जीतते। अब हम कंपेयर करेंगे कि नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन एंड नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। ओके, कितने वो जीते और कितने खेले। अगर वो 40 मैच जीतते हैं तब उन्होंने कितने खेले थे, 100 मैच खेले थे। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है कि अ फुटबॉल टीम वॉन 100 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे हैव प्लेड, तो मतलब कि अगर वो 10 जीतते हैं तो उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं। समझ में आ कि नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन एंड नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। अगर वो 40 मैच जीतते हैं तो वो 100 मैच खेलते हैं, ये हमने हमारे एजम्पशन से ही डिराइव किया है। तो अगर वो 10 मैच जीतते हैं, ये क्वेश्चन में दिया है, तो टोटल वो कितने मैच खेलते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस they played equals to 10 into 100 upon 40. 5 2s are 10, 2 2s are 4, and again 5 2s are 10, 2 2s are 4, 5 5s are 25 matches. टोटल वो कितने 25 मैच खेलते हैं। तो हमेशा याद रखना कि ये लॉजिक है इस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट का, कि जब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ना हो तो उस ओरिजिनल वैल्यू को क्या कर दो, 100 अज्यूम कर दो। जो परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिया है वो परसेंटेज उसके ऊपर अप्लाई करो और वैल्यू डिराइव कर दो और बाद में कंपैरिजन कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। आगे अभी हम 8.2 एक्सरसाइज करने जाएंगे तो उसमें पहला ही क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड आएगा कि इसमें क्या है कि सैलरी हमें दिया हुआ है, इंक्रीज्ड सैलरी दिया है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी नहीं है हमारे पास, तो ओरिजिनल सैलरी को 100 अज्यूम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। ओके, लेक्चर पॉज करके ही आपको लिखना था।
Now let us have a question 5. If Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, तो देखो इस एक स्टेटमेंट का काफी सारा मतलब निकलता है. इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट, 600 लेफ्ट मतलब अब उसके पास बचे हैं. आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, उसके पास जितने भी रुपीज थे इन टोटल, उसमें से 75% स्पेंड यानी कि खर्च करने के बाद उसके पास कितने 600 रुपये बचते हैं. आई एम रिपीटिंग द थिंग्स. चमेली के पास जितने भी रुपीस थे टोटल, उसमें से 75% मनी उसने स्पेंड कर दिए यानी कि खर्च कर दिए. उसके बाद चमेली के पास 600 रुपये बचते हैं. इस एक स्टेटमेंट का इतना बड़ा मीनिंग निकलता है जो कि हमारा समझना ज़रूरी होता है. ठीक है. देन हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, तो ओरिजिनली यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे. अगेन ओरिजिनल वैल्यू नहीं है तो उसको 100 अज्यूम कर दो. ठीक है. तो देखो लेट चमेली had 100 rupees at beginning. स्टार्टिंग में उसके पास 100 रुपीज थे. अब आप कहोगे कि बचते ही उसके पास 600 है, फिर भी हमने 100 अज्यूम किए हैं. हाँ, हम अज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं. ठीक है. अजम्पशन का कुछ इसके साथ लेना देना नहीं है. पर हम क्या कर रहे हैं, हमेशा परसेंटेज 100 के प्रोपोर्शन में लिया जाता है, इसलिए 100 अज्यूम करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए. दूसरी चीज़ कि ये सम भी अलग मेथड से हो सकता है, ऐसा है नहीं है कि नहीं ही हो सकता, लेकिन हम हमेशा एक पैटर्न स्पेसिफिक फॉलो करेंगे तो कभी कोई सम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे. जैसे कि मैंने एक पैटर्न आपको बता दिया कि जब भी आपके पास ओरिजिनल वैल्यू ना हो तब उसको 100 अज्यूम कर लेना है. तो हर एक सम में वही लॉजिक अप्लाई करना होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना हर अलग अलग सम में मैं अलग अलग मेथड करवाऊंगा तो आपको दिक्कत ज़्यादा होगा इस वजह से. ठीक है. तो 100 रुपीज़ उसके पास बिगिनिंग में थे. अब कितने वो स्पेंड कर देते हैं, तो हमें बोला है कि 75% ऑफ हर मनी शी इज स्पेंडिंग. ओके. सो वी कैन से दैट शी इज spending 75% of this money. इसमें से वो 75% क्या कर देती है, खर्च कर देती है. तो वो भी हम ढूंढ लेते हैं कि कितना खर्च कर देती है. सो therefore money she is spending is equals to 75% of 100, यानी कि 75 अपॉन 100 इंटू 100, यानी कि कितने हो जाएंगे 75 रुपीज़. तो अब हम कह सकते हैं कि उसने 75 रुपीज़ क्या कर दिए, खर्च कर दिए. अब क्वेश्चन में जो दिया है मनी लेफ्ट विथ हर दिया है, तो यहाँ पर भी मनी लेफ्ट विथ हर हम ढूंढ लेंगे. देयरफॉर मनी लेफ्ट विथ हर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 75, यानी कि 25 रुपीज़. तो उसके पास कितना बचता है, 25 रुपीज़ बचता है. अब हम कंपैरिजन करेंगे. मनी लेफ्ट विथ चमेली एंड मनी at beginning with चमेली. कितने बचते हैं और स्टार्टिंग में कितने थे. तो देखो उसके पास 25 रुपये बचते हैं जब स्टार्टिंग में उसके पास 100 रुपीज़ थे. तो उसके पास 600 रुपये बचते हैं तो उसके पास ओरिजिनली कितने रुपीज़ थे. सो this will be, we can say that money with Chameli at
बिगिनिंग इज इक्वल्स टू 600 इंटू 100 अपॉन 25, 25 4 2400 रुपीज़। ठीक है, इतने जो है वो उसके पास ओरिजिनली रुपीज़ होंगे। ठीक है, आप लॉजिकली भी ये सम कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं हर बार मेथड सेम रखना चाहता हूँ हर एक क्वेश्चन के लिए या हर एक सम के लिए, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से करवाया 100 अज्यूम करके। ठीक है, जो मैंने जैसे कहा कि ओरिजिनल वैल्यू नहीं थी हमारे पास, परसेंटेज था, तो वो परसेंटेज से ही हमने पहले 100 अज्यूम कर लिया, परसेंटेज से हमने कितने उसने खर्च कर दिए वो रिड्यूस करके कितने उसके पास बचे वो ढूंढ लिए। अब कंपेयर कर लिया, जब 25 बचे तब ओरिजिनली 100 थे उसके पास, तो जब 600 बचे तब ओरिजिनली कितने होंगे। ठीक है, तो ये ढूंढने के लिए हमने ये चीज़ की। अब हमें अल्टीमेटली ओरिजिनली उसके पास कितने थे वो रुपीज़ मिले। तो ये लॉजिक रहेगा, जब भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होगा हम 100 अज्यूम करेंगे। लेक्चर पॉज करके ये आप क्वेश्चन 5 लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 6 शुरू करेंगे। Okay, now question 6. Last question of this exercise 8.1. देखो, if 60% people in a city like cricket, जितने भी लोग हैं सिटी के अंदर उसमें से 60% लोगों को क्या है, क्रिकेट पसंद है। 30% लाइक फुटबॉल, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है। एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, जितने भी परसेंटेज बचे, अगर हम देखने जाए तो 60 और 30 है जो कि क्रिकेट और फुटबॉल वाले, तो 60 प्लस 30 कितना हो जाता है 90। तो कितना परसेंटेज बचा, 10% बचा, 100 होता है टोटल हमेशा। ठीक है, तो 10% बचा, दे ऑल रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, 10% को दूसरे गेम्स पसंद है। देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, तो कितने परसेंटेज ऑफ पीपल जो है जिनको अदर गेम्स पसंद है, तो वो हम ढूंढ लेते हैं। देखो, पहले तो परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट इक्वल्स टू 60%. Then percentage of people like football equals to 30%. ठीक है, तो 60 प्लस 30 टोटल कितना होता है 90। 100 में से इस 90 को हम रिड्यूस कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स मिल जाएगा। सो परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स इक्वल्स टू, टोटल परसेंटेज होता है 100 माइनस 90 दोनों का मिला के, सो 10% people like other games. If the total number of people is 50 lakh, सिटी के अंदर टोटल लोग जो है वो कितने 50 लाख है, देन फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर हमें ढूंढना है कि जिनको जो जो पसंद हो। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इक्वल्स टू 50 लाख है, तो 50 और उसके बाद 5 0। ठीक है, तो 50 लाख पीपल आर देयर हु आर देयर इन द सिटी वी कैन से, और हमें हर एक के नंबर ऑफ ढूंढने हैं, परसेंटेज हमें दिए हुए हैं। तो पहले हम क्रिकेट कंसीडर करते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट इक्वल्स टू 60% ऑफ टोटल कितने हैं 50 लाख, ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास।
ठीक है, तो इसका 60% हुआ लाइक और हु लाइक क्रिकेट, तो 60% ऑफ दिस यानी कि 60/100 इंटू दिस, ये कैंसिल हो गया, 6 5 30, 1 2 3 4 और 5, 30 लाख पीपल आर देयर हु लाइक cricket. Okay, now let us have a football. So number of people like football. फुटबॉल के परसेंटेज कितने हैं? 30. सो वी कैन से दैट 30% ऑफ टोटल, यानी कि 30% ऑफ 50 लाख लाइक फुटबॉल. ठीक है, टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है उसके 30% को फुटबॉल पसंद है, तो 30/100 इंटू 50 लाख. तो यहाँ से हमें मिलेंगे फुटबॉल पसंद करने वाले लोग. 5 3 15, 1 2 3 4 5 5 0. ठीक है, सो वी कैन से दैट 15 लाख पीपल आर देयर who like football. And now other games. Other games पसंद करने वाले लोग कितने हैं? So number of number of people like other games equals to other games वाले कितने? 10%. So 10% of 50 lakh. So 10/100 into 50 lakh. So 0 0 कट. So 5 लाख लोग होंगे. Okay, like अदर गेम्स. ओके, अगर आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि 50 लाख में से 30 लैक्स एंड 15 लैक्स सब्ट्रैक्ट कर देते, टोटल 45, तो भी ये मिल जाता. अदरवाइज दूसरा क्रॉस चेक कि आप 30 + 15 + 5 टोटल एडिशन करो तो 50 लाख पीपल हमारा हो जाता है. 45 + 5 50. ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज. ये बेसिक कंसेप्ट थे सारे. अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे. उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट में आपको बताऊंगा रिगार्डिंग द प्रॉफिट लॉस, वी कैन से दैट डिस्काउंट एंड ऑल. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में. लेक्चर पॉज करके आप ये लिख लीजिए क्वेश्चन 6. यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 हमारा खत्म होता है. एंड हियर विद वी आर एंडिंग दिस लेक्चर ऑल्सो. ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर.